अभी 17 तारीख के बाद क्या होगा इसका कुछ न्यूज नहीं आया ना अभी तक। नहीं, कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है। डोमेस्टिक कल तो फ्लाइट्स 17 है। कल पता will चलेगा। come tomorrow, sir. Yeah, Tomorrow, कल। tomorrow। कल कुछ क्या है अनाउंसमेंट है एज इन लाइक। हाँ हाँ, कल अनाउंसमेंट कर दिया है सर कि कल हर एक चीज बताया जाएगा सर, पे वो बताया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा कहाँ कहाँ, मतलब ऑरेंज जोन रेड जोन पे क्या क्या हो रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छा कल अलाउ किया आएगा। जाएगा। ओके, एक दिन पहले आएगा न्यूज। Okay, Paritosh, yeah, I think you can just tell others about yourself a bit, just to be, Okay. Yeah. Hello everyone. Myself Paritosh. I'm from Pune. Okay. So for last 2 years, I've been into digital marketing and web development, etc. But apart from this, I had a few hobbies, and what I feel is, I mean, instead of I'll come to the point. My idea that I'm working on is something that is not new, but I'm trying to repackage something that is already existing. Okay, and it is the need of the hour, as well as it is something that we can scale up. So what is it? The thing that I'm trying to work on is indoor farming. Okay, to grow your own veggies in apartments using hydroponics or other means, whichever is suitable. So right now I have already for last 2 months, due to the situation as well as due to my interest, I had done some research previously as well on hydroponics. So I thought this is a good time in the lockdown to spend some time on it, and it's really it's pure science. We just have to do the right things, and it will give the right results. So after exploring it, mostly from free tutorials and YouTubes and everything, I'm able to grow quite a few greens in my balcony. I get quite ample amount of sunlight, so it's they are going good. And while getting involved in the online community of indoor farming, indoor gardening, hydroponics and everything, I have seen an immense rise in the demand of this uh, this thing, because the supply chain has been badly hit, and I don't see it's getting fixed easily. And even if they solve that supply chain issue, the inflation is going to be really high. So demand of good quality, pesticide free, as well as something that you are growing yourself, the experience of growing it is something that everybody will love to do and invest on. And it's an investment which is, if done rightly, it has nothing to lose. You will uh, always have something to eat, I mean, from your balcony. So the product is good. I mean, no chemical free and everything organic, and we can do achieve that. So it is something that a lot of people are already doing, but nobody has marketed properly to specifically to urbans, living in apartments. A lot of urbanites have been doing it, but nobody has marketed it as a as business, nicely as could be possible. No, as a so business kind of, sorry, as a business also, like सब लोग as a अपना business, अपना कर रहे हैं, but it's अपना not अपना like कर रहे हैं, but anybody is providing service like this. yes, service in the sense, yeah, we can there are a lot of ways on how we can explore this opportunity. Like we could start teaching it. I mean, I'm looking for a mentor, who has been done this, who has done this for long, and who can guide me in proper point. So that is something that I'm looking forward to. And marketing part I can handle because I've been doing digital.
And yeah, so where was I? Yeah, Yeah, so when you're there are many ways on how we can go ahead with this. One is teaching other urbanites on how to grow their own veggies in their balcony. Second, uh, we to scale it up, we can start our own hydroponic farm once this COVID situation is over. We could, set up a hydroponic farm nearby, and we could easily, feed the local area. And the our my idea is, to create a team of urbanites or like-minded people who wants to take this up, wants to grow their own veggies, and later on everyone can start their own hydroponic farm in their own region, because they would have the knowledge of growing it from their own apartments. They are already interested, that's why they are doing it. And with when the time comes, when the time is good, when we are able to go out and do the setup and everything, then we can easily scale up and make it something big. so That's all. इसमें which all veggies can be grown here? Like, what is the Okay, complication of like, versus pricing right. There are with here? there are different level of difficulty. Okay, the most easy to grow are lettuce and cabbages categories. The vines categories are also easily could be done. Mhm. The most difficult are the root. So I mean, any veggies with root like potato and beetroot and etc. So anything with a root fruit is difficult. And again, there are different type of hydroponics and different type of farming. Whether you are doing Kratky method, or you are doing the pipe method, or you are doing aeroponics, or you can use uh, aquaponics, where you feed the fish and the fish will feed your plants. That's a totally sustainable and sustainable model, where you don't need any manure. You just have to Okay. feed your fish, and the manure, the water excreted by the fish, the fish pond, Yeah. that will feed your plants. That is a very good manure. So that is that. But this is possible only at a little larger scale. It's not possible in your balcony or terrace. Okay, so yeah, so there are various methods uh, to do it. Yeah. I think Question anyone has? Yes, Aman. I think it's a very good idea, but if we can add like sometimes apartments can क्या होता है ना कि अभी pollution होता है, we can also add some plants जो pollution free कर like anti free जो pollution होता है उसमें वो भी add कर सकते हैं इसमें. Plus I have a Yeah, question that I have a question this that this is the specific I think इसके जो customers होंगे आपको एक specific customer choose करना पड़ेगा like I don't think that middle class or every people is interested in this. I think the high class like CEOs of the company and top co-founders and they are really richful. They if you target that market, then it will be very beneficial for them. And my question is that mhm. दैट इसका जो पूरी जो प्लानिंग होगी वो मतलब कि कैसे मतलब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा एक तरह से मतलब लाइक लाइक वो केवल आपको वो आपको प्लेस दे देंगे बाकी सारी चीजें आप करोगे कि वो प्लेस देंगे आप प्लांट्स के लिए केवल आप करना चाहते हो. Okay, the service model, the what service I'll be providing. हाँ, मतलब That is, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? कोई मेरा डायरेक्ट contribution क्या रहेगा? Okay. यूट्यूब से Yeah, या कहीं से so नहीं कर सकते क्या? right. So YouTube, obviously everything is there. I am learning from YouTube only, but the systematic way, if we present it, I'm just trying to repackage it, which is not done yet, and present it with a service of how what see. It is something जिसका service मैं सिर्फ locally ही provide कर सकता हूँ. Maybe in my society or nearby.
That's true. Right now, at present, it is not possible due to lockdown and etc. But even if I assume that the lockdown is over, ठीक है, अगर lockdown नहीं रहेगा, if everything comes to normal, in that case, I can set up something, like something like big, like I could rent a terrace in an apartment, and I'll scale it. I mean, do it in a big scale, and I can deliver the produce to nearby hotels and everything. So we could grow exotic veggies and sell it to five-star hotels. That is something that already a lot of people are doing in metros. And so to reach to that position, I want to start with local, urbanites. And I feel that it's not only the premium urbanites who would be interested, because it is something very cheap. I have spent only 1,000 rupees, and everything I can grow. I have everything to grow for a year. I can grow everything for a year. Okay. So it is very cheap. You can reuse old bottles, old paints, paint के जो drums होते हैं. So there are a lot of things, and I'm using organic. Cow dung is something that is easily available in all over India. Okay, that is the best manure. Cow urine, even you can use your own urine, which is one of the best fertilizer. Not many people know, but your own urine is having nitrogen, phosphorus, potassium, everything that a plant needs, and a lot of people does this. Uh, but yeah, so it is really cheap, and you get to have your own organic pesticide free veggies. And why won't people take it up? And yeah, right now, like you mentioned, to go for pollution, reducing pollution. Yeah, that is one very good point. Similarly, I'm also promoting microgreens. Now microgreen is something that uh, that is 40% more nutritional than the grown up veggies. Now let's say you buy a broccoli. Now when the broccoli plant is just grown uh, big enough to have only 2 or 3 leaves. ओके, जस्ट स्प्राउट हुआ है, थोड़ा शूट निकला है, 2-3 लीव्स निकले हैं, दैट्स ऑल. दैट इज, आई मीन, माइक्रोग्रीन इज अ टीनेज वर्जन ऑफ अ प्लांट. ओके, जस्ट 2-3 लीव्स निकले हैं, and you just cut it, and you can eat it raw, wash it and eat it raw. So broccoli microgreens, radish microgreens, I'm right now growing mustard and methi. So I won't let the crops to be grown full. I will cut them when they are in the teenage version, only 2 or 3 leaves. And that is far more, it comes in a superfood family actually. It is part of a superfood, and it is nutrition packed, far more nutritious than grown up veggies. So it is very useful to boost your immune system as well. Okay. So you could Google microgreens, you will get a lot of articles. So I'm promoting microgreens, and it is very easy to grow. You can grow, anybody can grow indoor with only water or a few chemical, few little amount of fertilizer in a tray. Or so that's Yes, Neeraj, you have a comment. Yeah, Vishal. So yeah, idea looks quite niche. Um, I'm still confused. Like, what's the business plan is? Um, like how you are going to make a business out of it. I'm still okay. confused around it. Okay, so my business plan is, in the beginning, I would I want to get associated with a mentor who is good in farming, and who has been doing it. I'm looking for somebody who can whom I can promote, or who can get involved with me. And second, I would try to
market and teach others about this. I'll try to repackage this indoor gardening uh, as a something that urbanites need to get sustained in from food point of view. Okay. Are you also going to provide like what all prerequisites are for it, like whatever method, like pipe method or something, whatever they are going to need for that? Are you also going to supply all those things? Like a starter kit. Yes, yes, exactly. No, I won't supply anything. I would only provide what you need. Okay. I would provide the instructions that if you want to do this, you need these items. Okay. See, it is something that is very, there are a lot of options, as I said. Now, what is available in your area is something that you should go after. And You are looking it at as a social venture, or you are also looking at some profits out of it? of course, profit. Yeah. So, just providing instructions, how much do you think that can you can put some cost around it and you can gain out of it just for instruction? Have you done some kind of market survey or something, like how much people are ready to pay for just for instructions? Okay. Yes. So it's So, advising like throughout instruction, I guess, consulting. yeah, something it is something that you need constant observation and instructions from others, like who has done it. Now whether the leaf is turning brown or black will decide how you will treat your plant. So you cannot go to YouTube and search every time that, oh, my leaf is turning brown, what should I do? You need a ready mentor, ready to help mentor to guide you. So it is something that is very much Uh-huh. required. And yeah, what the survey that I've done is, uh, in last 2 months I did some Facebook organic marketing. I posted some powerful posts, and within a month I have a Facebook group of 10 people who are ready to learn from me, who have probably done more than me. I am doing the first time, and they are ready to learn from me, and they are following my instructions. I'm just giving them instruction in a way uh, that is more relatable and people that and more powerful. So Okay. people are following me. So this is you're doing for free or you're charging them something? I'm doing for free. I need data, right? Right now I need Okay. more data, so I'm doing it for free. So my understanding, Paritosh, my understanding around it is uh, just not about this, but many other different business models which I have seen, which are instruction intensive, and the prerequisites are very less, or which are can be uh, bought from anywhere and it's not something specific. So in Mhm. these kind of scenarios, what people generally do, they comes up with a startup package or startup kit kind of something, and Okay. that is something which will enable you for a transaction, like you are going to Okay. create some kind of link. It's not Uh-huh. cost much, like 200 300 kind of rupees. This is the Uh-huh. kit, this is a book summary, or there are Uh-huh. some equipments also in it, and that will create a transaction, and that will create a firm relationship. And then in that you can add, okay, with this much amount, I'm also providing instructions to continue with this because I'm having more experience, I have done it, I have learned it. So that way it seems to be more sustainable. uh, but Uh-huh. just saying to everyone, okay, I can only give you instructions and this is the amount I'm going to charge for it, and you have to procure everything yourself and you have to do it yourself. uh, that's like Okay. uh, I for that, getting the customers onboarded, Mhm. um, Mhm. acquisition of customers is going to be little difficult. That's my understanding. So Okay. परितोष, I will say कि अगर सिर्फ instruction ही देना है
you might as well make your own YouTube video, and you know that YouTube video can have views and subscribers and things, and once it reaches certain level you can monetize. तो वो चीज कर सकते हो. Yeah. हम्म. Okay, और one thing. उसी yeah Uh, yeah continue Pritesh. Yes. Yeah, so my question is, मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन मॉडल इसलिए चूज किया था बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि मैं कैसे उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करूँ. ठीक है, लोकल एरिया में आई माइट अरेंज देम कि ओके यू नीड दिस, आई विल अरेंज इट, मैं पैकेज करके दे दूंगा या फिर आई डू समथिंग लाइक दैट. बट इफ समबडी इज रिमोटली इन अदर सिटी, हाउ कैन आई डू दैट? नहीं देखो, तो तुम स्टार्ट तो लोकल करोगे ना पहले. हाँ, एक झटके में पूरा इंडिया तो हिट नहीं करोगे. मतलब अगर हम्म, अभी जैसे हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट स्टार्टिंग, राइट? सो yes, starting even a school or a coaching center starts from a small area. right. After it gets better, anyone who wants to speak, please? one more point, Vishal, I want Yes, to add हाँ. is कि अभी जैसे बात कर रहे हैं कि अगर कुछ डिलीवर करना है तो वो कैसे करना है, राइट? तो उसमें मतलब आई एम जस्ट नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड राइट नाउ कि किट का साइज कितना बड़ा है. क्या कुछ ऐसा आइटम है कि जो कि इट कांट बी डिलीवर्ड वाया सम कुरियर सर्विस, क्योंकि Amazon, Flipkart सब कुरियर सर्विसेज पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? तो अगर कुछ ऐसा है कि जो डिलीवरी नहीं किया जा सकता, तो दैट कैन यू कैन से ओके यू हैव टू बाय इट फ्रॉम योर लोकल मार्केट, बट देयर मस्ट बी समथिंग which you can include something in a packet or some kind of kit you can create, where you can have some handouts to start with, some kind of chemicals, the initial formation for that the solution which you will be creating. I believe that's soil less farming, right? मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए ये है, राइट? Yes. हाँ, ठीक है. तो जो भी वो एक शुरू में एक जो सॉल्यूशन क्रिएट करना है, उसके जो भी बेसिक केमिकल्स वगैरह, यू कैन क्रिएट अ किट फॉर इट, एंड ऑन दैट यू कैन काउंट ऑन क्वालिटी. लाइक you can say okay, if you are buying these things from me, I can assure you the quality, because you may not find these things as per the standards which are required in your local market. So this is how you can start with it. Kit Okay. and making a initial transaction to build that relationship is must. Just saying that okay, come to my YouTube channel or pay this much and have instruction from my side, that's little difficult to acquire customers. The acquisition will be really difficult in that scenario. Only people who are really interested, who really want to do it, and like जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ कुछ लोगों में अपने ही आप से मन में होता है, तो वो लोग तो खुद से आ जाएंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं कस्टमर्स में. यू हैव टू पुल सम ऑफ द फॉक्स विच आर नॉट दैट इंटरेस्टेड बट एक बार करके देखना चाहते हैं, तो उनको अगर आपको ऑनबोर्ड करना है, तो यू देन अ ट्रांजैक्शन, a relationship is must, which can only be done through something physical, like a kit. Okay. Yeah. So इसमें और भी चीज हो सकता है. If you want to make it just instruction only, but then you maybe have to do workshops in colleges kind of thing. जो बच्चे फाइनल ईयर वगैरह में है, अगर उनको एक वर्कशॉप दे दिया जिसका एक स्प्लिट रेवेन्यू कर लिया कॉलेज के साथ ही कि ये कर सकते हो, कर सकते हैं, 50% तुम्हारा 50% मेरा, तो उस टाइप से चल सकता है. एक्चुअली जैसे नीरज ने भी बोला कि जस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन टेकिंग मनी इज हार्ड. So there are some things for which instructions can fetch you money, like let's say IIT tuition, right? जो maths physics का tuition होता है, but वो established है सालों साल से, मतलब बहुत साल से कि हाँ ये tuition है, मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, आपका क्वेश्चन आप मुझे जितने पैसे देंगे, पेरेंट्स देंगे, जो भी देंगे, वो ऑलरेडी established है. ये सब चीज क्या है, ये सब चीज नया है, राइट? तो नया चीज के लिए पैसे निकलवाना इज हार्ड. So like what नीरज was saying, कि मिलेंगे कुछ लोग मिलेंगे और पता चला कि आपने बहुत टाइम लगाया, ये किया वो किया, आपको लास्ट में 5-10 ही लोग मिले, तो it won't be worth it, right? And I mean if you want to just make instruction, like YouTube का प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट तो भर के है, लेकिन वो कंटेंट सॉर्टेड नहीं है, like you are saying, right?
So if you can make a Right. sorted content and then make a YouTube video and make it Hmm. more like a teaser video, ये चीज है, इतना चीज से आप बेसिक कर सकते हैं. इसके अलावा if you need more hand holding, then you know there is like this kind of P and kit etc. तो वैसे भी कर सकते हो. Yes, Realme 2 Pro. I think. Yes, Okay. please एक introduction अपना. Yeah, I'm Nisha. Yeah, Yes. hello, I'm Nisha. Why your name Yeah. is not? Actually, I don't know. I don't know. Okay, I'm Actually, changing. sorry for being late. Yeah. My question is that is he planning for just to be an instructor or just to do a business of like harvesting and like innovative idea of organic farming? I don't get his idea. Actually, I'm a little bit late here. So just Yeah, briefly you can explain. let me know, please. Yes, Paritosh, थोड़ा सा Yeah. quickly. I want Just to- 1 briefly minute. explain me. I want to Elevator start. page. Oh yeah. I want to start as an online teacher of soilless and organic farming, and later on I want to scale it up as a city farmer. Okay. I have an idea. I have an idea regarding this. See, I have seen on Geographic Channel, and it will be in the coming days. I think it will come to our market also. Like one can do organic farming in a very short area, like in a area like मैं हिंदी में बोलती हूँ जैसे एक ट्रक होता है, एक ट्रक के अंदर एक एटमॉस्फेयर जनरेट करना, एसी कूलिंग और जितना हीट और कूलिंग चाहिए प्लांट के लिए, और उसको जैसे आप बता रहे थे लाइक इन अ ट्रे, एक ट्रे के अंदर जैसे आप ब्रोकली 2-3 लीव्स पर प्लांट उगा रहे थे, उस तरीके से एक ट्रक के अंदर है, जिसको वर्टिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, एक ट्रक हो गया, या फिर एक बहुत बड़ा जिसमें सामान ढोया जाता है, टाटा के प्लांट का जो भी सामान, जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़ा सा बॉक्स जैसा होता है, उसमें जो है Yes. वो 3 एकड़ के जमीन में जितना नहीं, तो he is उगा सकते doing हैं उसके saying इक्विवेलेंट balcony में वो ही. बस उतने छोटे से Yeah, एरिया the same में. thing. नहीं, हाँ. he is So saying I'm doing balcony में ही, हाँ, ना अपार्टमेंट के vertical balcony में ही farming. करना है इसको. और छोटा. ठीक है. तो So वो इसका जो idea है है कि नहीं, इसका आइडिया मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ. इसका आइडिया है इसकी घर है, आपका balcony है छोटा सा, 2x2 एरिया है, whatever 1x2 है. नहीं, आप 2-4 सब्जी ये उगा वहीं लें. पे करना चाहते हैं. हाँ, ताकि ये लॉकडाउन जैसा सिचुएशन कभी जिंदगी आए या नहीं भी आए तो आपका एटलीस्ट भूखा नहीं मरे आप. ये दैट्स हिज गोल. भूखा नहीं मरने के लिए यू शुड डू अ बिट ऑफ अ फार्मिंग राइट इन योर हाउस. राइट इन योर हाउस. या रौनक, अभी तो बहुत लोग कर भी रहे हैं. हाँ, कर रहे हैं वही. तो he wants to scale this to बहुत लोग कर रहे हैं. जिसको पता नहीं है. हाँ. जैसे मुझे भी नहीं पता है, राइट. तो बिल्कुल. अच्छा, परितोष, मेरा एक क्वेश्चन था. तुमने बोला 1000 रुपए में पूरे साल का काम हो जाएगा. इज दैट समथिंग आई अंडरस्टूड करेक्टली, या 1000 रुपए पर मंथ या Maybe कुछ कैसे? not more than 2000. अगर बहुत ज्यादा भी तुमने यूज किया, मैं 2000 अभी per month? Sorry? 2000 per month? नहीं per year. See, Per year. पर ईयर. ओके. yeah per year. It's enough. Okay, so this is your good selling point. That is not. 2000 रुपए आप That is. दें. तो ये 2000 वाला मैं बोल रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नॉट हाइड्रोपोनिक. ठीक है, उसमें सॉइल भी लगेगा और आई वुड बी गेटिंग काउ डंग एज मैन्योर एंड यूरिन एज फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग व्हिच इज नेचुरली अवेलेबल एवरीवेयर. हाइड्रोपोनिक इज लिटिल कॉस्टली एंड उसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होता है. कॉस्टली कितना किस लेवल? 2000 की जगह 10, 5, 20? हाँ, उससे ज्यादा नहीं. 10 कितना? अराउंड 5000. 5000. हाँ, तो ठीक है. तो 5000 पर ईयर अगर है, या 6000 ही हम लिखते हैं, 6000 अगर पर ईयर है, इट्स लाइक 500 पर मंथ, राइट? सो इफ मेरे घर में तो खैर ज्यादा लोग रहते हैं, 100 से 200 रुपए का सब्जी ऐसे ही आता है, राइट, हर दिन. जनरल है ये खर्चा. 100 से 200 का खर्चा होता है सब्जी का, राइट. तो यहाँ अगर 500 रुपया पर मंथ में हो जा रहा है, चलो 500 की जगह और मानते हैं 1000 में ही हो जा रहा है, ऐसे तो मेरा 3000 लग रहा था, राइट.
मेरे 1500 भी लगता है तो भी ये सस्ता है मेरे लिए, 2000 लगता है तो भी सस्ता है, 2500 है तो भी सस्ता है, इनफैक्ट 3000 से सस्ता है और अपना खुद का बना बनाया है, राइट? So that will be the selling point कि खुद का बना बनाया, just like you can think like Subway sandwich. एक्सक्यूज मी सर, Right. एक Yes, क्वेश्चन है Ronak, हाँ, question please. सर। ये मतलब सब्जी पे फोकस हो रहा है कि यहाँ पे ये एक सिर्फ एक फैंसी गार्डन टाइप का है? क्योंकि अगर सब्जी फोकस हो रहा है वो तो सीजनल होते हैं ना, वो हर सीजन में नहीं हो सकता है। Paritosh will answer. Paritosh, can you hear? Yeah, so yeah, vegetable उगाने का ही बात हो रहा है. So vegetable hydroponic में अगर if you want to grow all round the year, you can grow it indoor in air conditioned environment as well using LED lights. Okay, so it's not seasonal anymore. Like season can be created, simulated. Season can be created. You can create your own season. Yeah. Okay. बट fact, यहाँ तो Saudi बालकोनी का Arabia- बात हो रहा है कि वहाँ इतना अमाउंट हो हाँ, सकता है क्या कि इतना अमाउंट में मतलब ये भी मतलब बेसिकली वेजिटेबल उग सकता है कि वो एक पूरे फैमिली को एक पूरा कंप्लीटली एक मंथ तक स्टारवेशन से बचा सकता है? क्योंकि यहाँ बेसिकली बालकोनी में बहुत छोटे एरिया में Yes. पानी का बात हो रहा है। हाँ. So in balcony I'll be growing seasonal plants. जैसे जब जो सीजन रहेगा वो आप वो उगाओ. Mhm. Is it enough for the family? Like दो, let's say हम दो हमारे दो टाइप, 4 लोग, 3 से 4 लोग. Paritosh, can you hear me? हाँ, नहीं, क्वेश्चन इज कि जो 6000 रुपए पर ईयर का बोला तुमने, is it sufficient for the like nuclear family, 3-4 people in house? Okay, below poverty. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये पैसे लग रहे हैं 6000 पर ईयर, इससे कितने लोग फीड होंगे? Like let's say how many adults for that matter? Okay, so it's difficult to calculate. रफली अगर मैं एक क्यों, वो तो रफली ही बोलोगे कि 6000 में आप 6 महीने खाएंगे ऐसा? मैंने जैसे बोला ना कि 1000 रुपए पर मंथ लगता है ना, स्टिल ओके. हाँ, फैमिली ऑफ 4 इज एनफ. फैमिली ऑफ 4 के लिए. जैसे तुम अभी अपना कर रहे हो, तो अपना कैसे कर रहे हो? आई थिंक यू आर लाइक 3 people, राइट? आई मीन 2 adults 1 child. हाँ, हम लोग हाँ 2 ही है, एक तो बच्ची है. हाँ, तुम्हारे कैसे, क्या खर्चा है, क्या है, क्या उगाते हो? थोड़ा लाइव एग्जांपल दोगे ना तो लोग कनेक्ट करते हैं थोड़ा इजीली, rather than तो very जैसे हम dreamy thing. लोग तो अभी जैसे हम लोग 3 लोग हैं. राइट नाउ आई हैव प्लांटेड पोटैटो सीड्स जो with after 3 months will give me around 5 kgs of potato. At least 4 तो दे ही देंगे. I have planted rajma seeds जो कि within a month I would be growing, I would be enough to feed for enough rajmas for a month. अगर मैं एक लौकी लगाता हूँ, now the seed अभी courier आया नहीं अभी मेरा, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है some seeds broccoli and लौकी. तो अगर मैं एक लौकी का बीज अगर मैं लगाता हूँ, so it will give me at least 10 kgs of bottle gourd लौकी in a span of month or 2 months. तो मतलब 2 महीना के लिए काफी रहेगा आपका. एक लौकी का बीज से आप 2 महीना खा सकते हैं. बट लौकी क्या 10 kg. क्लाइंबर्स में आते हैं ना? So it is very cheap. It is very cheap. अच्छा, रौनक has a question. Yes, रौनक. हाँ, एक one by one. Otherwise Zoom में थोड़ा ये हो जाता है. रौनक, let me finish, then you speak. Otherwise overlap हो जाएगा. Yes, रौनक. हाँ, अब बोलो. सर लौकी का प्लांट तो बेसिकली क्लाइंबर्स में आता है ना, वो तो उसको कोई एक्चुअली सपोर्ट्स चाहिए कुछ. लौकी का प्लांट क्या में आता है? क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स. ओके. वाइनवर्स. हाँ, तो सपोर्ट के लिए आपको ऑफ कोर्स कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा. तो मेरे यहाँ पे बैल्कनी में नेट लगा हुआ है, तो हम वो नेट में चढ़ा देंगे, या फिर ऊपर में जो कुछ आप ये कर दीजिए, कील गाड़ दीजिए बैल्कनी के छत पे, वहाँ से एक रस्सी लगा दीजिए, प्लांट तक पहुँचा दीजिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं यू कैन यूज. आप एक बैम्बू स्टिक ले आइए, पतला सा कोई स्टिक ले आइए, उसको आप सपोर्ट के लिए यूज कर लीजिए. यू हैव टू बी क्रिएटिव ऑन दैट.
अच्छा Yeah. But it can be done. People are doing. Yeah, this is where he can charge money. He will be teaching, like hand holding, guiding on that things. क्या करना है, कैसे करना है. Anyone has any other question, please? Comment question. I think it's a very good idea. I like. चालू करूँ. वन मोर क्वेश्चन. Yes, sir. Rana. सर बट ये तो सीजनल प्लांट्स का अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग हाइड्रोपोनिक में तो नहीं जा रहे हैं कि आप उसको और थ्रू आउट द ईयर कर सकें. तो सीजनल प्लांट्स के बीच में एक सीजन के बीच में दूसरे प्लांट्स को लगा के वो दोबारा जब मैच्योर होगा तो उसके बीच में कुछ गैप तो होता है, दोबारा से हमें खरीदनी पड़ेगी ना. Santosh, yeah. What do you say? I am having difficulty hearing. यहाँ पे बहुत. Can you hear my sound? Yeah. Tell me. Yeah. So what Ronak is asking is कि seasonal चीजें जो हैं उसमें एक सीजन दूसरे सीजन में ट्रांजिशन पीरियड, लाइक तुमने भी जैसे बोला अभी कि जो हम लगाएंगे वो 2-3 महीने बाद से हमें फल देगा, राइट? तो ये 2-3 महीने क्या करेंगे हम? So once you have started growing, तो एक के बाद एक तो एक किसी ना किसी प्लांट से कुछ ना कुछ तो आपको मिलते ही रहेगा. Of course, starting में तो you have to have patience. Okay. But once you have started growing, आपको एक पॉट से अभी मिला, दूसरे पॉट से दूसरे महीने मिला, तीसरे पॉट से तीसरे महीने मिला, ऐसे साइकिल चलते रहेगा, आप घुमाते रहेगा. एक चीज और बताओ, एक प्लांट बालकनी में क्या तुम बोल रहे हो? छत पे भी तो हो सकता है, लाइक जो अपार्टमेंट होते हैं उनका ऊपर में छत होता है, राइट? ऑफ कोर्स छत अच्छा पे खासा हो जगह सकता होता है. है. इनफैक्ट छत पे तो और लार्ज स्केल में हो सकता है. बट हमारे यहाँ पे छत, आवर टेरेस इज क्लोज. I mean, सोसाइटी हमें छत टेरेस पे जाने नहीं देती है. ओके, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है. जहाँ सोसाइटी जाने देती है वहां तो कर सकते हैं ना वो लोग कुछ, या जो है शेड लगा के. इनफैक्ट अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं उसमें भी हो सकता है. देयर कुड बी लाइक काइंड ऑफ इंडोर फार्मिंग एट द वेरी टॉप फ्लोर और समथिंग दैट माइट क्रिएट अ किक फॉर द अपार्टमेंट सेलिंग आल्सो, कि आप भूखे नहीं मरेंगे. ये लॉकडाउन का एग्जांपल दिया जा सकता है कि देखिए लॉकडाउन है, ये हुआ वो हुआ, सब्जी नहीं मिला आपको, ये नहीं मिला वो नहीं मिला. ये सब चीजों, ये सब केसेस में आगे चल के कभी ना हो तो आप एटलीस्ट ये कर लो. इकोनॉमिकल भी है और आपका खुद का है, so why not? I mean, you can do like kind of a B2B kind of sale also to apartment owners. अभी बहुत सारे अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, ये उसका यूएसपी बन सकता है. एक फ्लोर पूरा गार्डन बना देना, जो भी है सब्जी वगैरह. सो ये भी हो सकता है. आई थिंक दिस कैन मच फास्टर. और अपने जैसे सोसाइटी, मतलब सोसाइटी बोल रहा हूँ, जो अपार्टमेंट में ही जैसे 10 फ्लैट है, 20 फ्लैट है, जो भी है, सब लोग मिलके भी कुछ कुछ कर सकते हैं. तुम ये लगा लो, मैं वो लगा लेता हूँ, तुम वो लगा लो, ये कर लो. हाँ एग्जैक्टली. माय एम इज टू मेक इट अ कम्युनल, क्या बोलते हैं, मिशन, कम्युनल आंदोलन. ठीक है. थोड़ा क्या है ना, लोगों को इमोशनल ज्यादा पसंद है, लोगों को इमोशन से ज्यादा अट्रैक्ट होता है. So I'm trying to hit their emotion of emotional यूज करना चाहते हैं अभी लोग. I think ये बच्चों लोगों के लिए भी बोला जा सकता है. छोटे बच्चे खासकर बहुत, अरे हाँ, they are so interested. बच्चों को सिखाने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए बहुत अच्छा चीज है. खाने के लिए ज्यादा एंगेज तो ठीक है, खाने के लिए जैसे कि kids need maybe purer food than the adults. Pure, yeah. और वो सब एंगल डालोगे ना तो people will be like तुरंत पिघल जाएंगे. अभी लोग 500-600 रुपए का एक डब्बा दूध लेते हैं केवल नैन का, इसका. तो वो जस्ट क्या है, यही बोलने का है ना कि इससे आपके बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, मिलावट नहीं है, या जो भी है, मतलब यूएसपी है. तो योर थिंग इज यूएसपी इज मेन कि मिलावट लीस्ट है या नहीं है, अपने हाथों से बनाया हुआ, राइट? ये बेसिकली घर का खाना जैसा है वर्सेस बाहर का खाना. घर का उगाया हुआ वर्सेस बाहर का उगाया. Yeah, very similar. So you're eating at home, eating outside, growing at home, growing outside, right? So you're going one step closer to the natural way of living, right? So अभी का जितना सारा issues आ रहा है, health issues and all, it's all because of मिलावट, right? मिलावट, मतलब people will relate to this right away कि हाँ सही बोल रहा है, मिलावट तो है,
सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं अपने पुराने जनरेशन से. वी आर वीकर, देयर इज नो डाउट. वी कैन नॉट प्राउडली से दैट आल्सो, बट वी आर वीकर. क्या अंतर हुआ? यही हुआ ना कि they had less Exactly. contamination. Right. I have a question, Exactly. sir. Yes, Aman. हाँ, बताओ. लाइक एक जगह से प्लेसेस पे सर लोग सर काफी मतलब जैसे बिजी हो गए, लोगों को ग्रोफर से शॉपिंग चाहिए, सब्जी चाहिए, हरी सब्जी मंगवा रहे हैं, फ्रेश एंड प्योर से मंगवा रहे हैं सर. तो कैसे से इसको यूटिलाइज ठीक है. लोग मोटिवेट करेंगे कि लोग मतलब घर पे खुद ही सब्जी उगाए या फिर ये करें? लॉकडाउन विल मोटिवेट देम. सर लॉकडाउन तो सर हाँ, अभी है ना सर, बट अभी तो कुछ ही दिन में खुल जाएगा ना सर. अभी खुल जाएगा क्या? बिल्कुल कौन नहीं, लेगा खुलना ही गारंटी? है. 6 महीने 1 साल से कुछ नहीं होने वाला. 6 महीने अभी 1 साल. अगले और साल से पहले खुल गया तो आई एम रेडी टू गो डाउन. हर तरह से. बिकॉज इसमें अगर एक तरह के सर्विस अगर इंक्लूड हो जाए सर, लाइक अगर आप मेंटेनेंस भी अगर उसमें दे, लाइक आपने उसको सारी हेल्प करी है उसको ग्रो कराने में, बट अगर आप उसको एक टेक केयर करो, लाइक मंथली आके उसको चेक करते रहो कि हाँ कितना ग्रो हुआ, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर आप उसको मंथली या फिर हर एक रेगुलर बेसिस पे अगर उसको चेक नहीं करते रहोगे, तो वो ऑर्गेनिक क्या होगा, एक स्पॉइल हो जाएगा सर वो किसी मंथली बेसिस पे, और वो एक पूरे अपार्टमेंट पे सब गड़बड़ कर सकता है. एक हम अगर हम सर्विस भी बना दे उस पर, तो एक ये भी बेटर रहेगा. और प्लस आई थिंक दैट और हमें ये जो है ये मेंटेनेंस खुद जाके करना भी पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आफ्टर लॉकडाउन पीपल्स आर सो मतलब इतना मतलब फ्री रहेंगे कि वो उसमें सही में वो उतना ध्यान दे पाए. सही बात है. आई थिंक see what you are saying. See, it's like 130 crore population right now. It's not कि परितोष might be looking कि सारा सबको एक साथ हिट कर लेंगे, right? It will grow slowly only, and just like this can be seen as a car buying service जिसमें regular maintenance लगता है, ठीक है? So that regular maintenance can be provided by, let's say, his venture. So अभी I think what he wants from us is कि or what I mean right now is that almost just in the homegrown thing, अपना घर का कुछ कर लिया उसने. अभी he want to make it a business, right? तो अभी आई डोंट नो लॉकडाउन में ये तुरंत लोग बाकी लोग स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं, बीज आ पाएगा, बाकी सब जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए. बट अगर अभी आ पाता है तो बहुत अच्छा इजीली मतलब बहुत तो ले लेते हैं आई थिंक. या है ना, अपने घर पे कुछ सीखते आधा एक घंटा, चलो देखते हैं क्या है. सर बट अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना. नहीं फाइनेंशियल पे आया तो 2-4 हज़ार के क्या पॉजिटिव पॉइंट है. खाना तो खा ही रहे हैं सब लोग. फाइनेंशियल क्राइसिस Financial crisis. नॉन एसेंशियल चीज के लिए है. Right. तो उनको अगर लोग को ये बोलोगे कि आपका 10,000 का राशन 5,000 में आ जाएगा, तो फाइनेंशियल हाँ, वही तो. तो बचा रहे हैं ना उनको. वही बचा ही रहे हैं. Yeah. Anyone has any other comment regarding this indoor farming, very localized balcony, one by one kind of area, और suggestion for परितोष की क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? All good. ठीक है परितोष, you have other question you can ask. No thanks. All good. ठीक है. Yeah, all good. Okay, thank you Paritosh. Yeah. So yeah, we wish you all the best, and you can always come Sure. back and tell us कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and maybe Sure. you can send us your LinkedIn profile as well. I'll share in the group. Okay, yeah, thanks. Yeah, okay, so we have one more person. Kunal, are you here? Kunal Ronak. Yes sir, we are here. Yeah, so who wants to talk about the drone thing or start? Yes, I can start. Yeah, sure. Yes, Ronak. Good morning guys. तो मेरा बेसिकली आइडिया है कि एक ड्रोन डिलीवरी सिस्टम बनाना है, जिसको बेसिकली ड्रोन आपका एक डिलीवर करेगा. बेसिकली हम मेरा करंट ये सेक्टर जो है वो फूड सेक्टर पे कर रहे हैं, और ये ड्रोन एक पार्सल वैन टाइप का मत समझिए, ये एक जोमेटो वाला की तरह समझिए, जो सिर्फ एक छोटा सा एक फूड समझिए, एक पिज़्ज़ा या फिर एक फास्ट फूड या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रॉसरी लेके जा रहा है. फिर
करंटली अगर मेरा जो हम ड्रोन यूज़ कर रहे हैं और वो एक मार्केट का ड्रोन से डिफरेंस क्या है, पहला अगर उस मतलब उस कैटेगरी में अगर जाएंगे उसके मतलब कैपेबिलिटी में, तो वो मार्केट में जो भी टॉप लीडिंग ड्रोन कंपनी है DJI, वो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका वो ड्रोन और मेरे ड्रोन से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरा ड्रोन 36,000 में जितना वेट लिफ्ट और जितना फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा है, उतना वो और उसका जो उसका एक ड्रोन है जिसका नाम प्रेडेटर है, वो उसका वो 1,02,000 करेंटली उसका भी लास्ट टाइम जब हम चेक किया तब दाम था, क्योंकि उसके बाद फिर उसका मार्केट दाम बढ़ते घटते रहता है क्योंकि चाइना का करेंसी अप डाउन होते रहता है। तो मेरा अभी करंटली उसका मतलब उसको एक फूड डिलीवरिंग सिस्टम टाइप का चेन बनाने का है। इसमें मेरा इनिशिएटिव का काम क्या है, सामने समझिए एक ऐप है, ऐप से आप फूड पे ऑर्डर किए, वहाँ से सामने वाले जो होटल वाले हैं उनको सिर्फ उसमें हुक करना है फूड को, और उसको एक वायरलेस चार्जिंग प्लेटफॉर्म से हटा के ओपन एयर में ला देना है। मेरे पास जीपीएस का एक 3D मैप, गूगल मैप और गूगल अर्थ टाइप के कनेक्शन है, जिसके थ्रू मैं एक वेब पॉइंट सेलेक्ट करके और एक हाइट सेलेक्ट करके अलग अलग डिफरेंट रेंज से उसको उस डिलीवरिंग सिस्टम तक पहुंचा देना जिस लोकेशन में डिलीवर करना है। और अगर इनकेस जैसे सिंपली अगर अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इनकेस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक फैमिली बहुत ज़्यादा फूड ऑर्डर किया, तो एक सिंपल आंसर है मेरा, अगर आप फैमिली ज़्यादा फूड ऑर्डर किया तो एक कैरी बैग में तो आएगा नहीं, वो 2 कैरी बैग में आएगा, तो पर कैरी बैग एक ड्रोन असाइन हम अलग से कर सकते हैं। अब आता है कि मेरा रोल जो है वो सिर्फ उसको मॉनिटर करना है और सामने, और क्योंकि ये प्रोफेशनली मॉनिटर होना चाहिए। अगर ये चीज़ मैं होटल वाले को दे दूंगा तो ये शायद उसको इतना अच्छा से वेल मेंटेन और मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसमें सिर्फ वही होटल वाले को करना है। मेरा सर्विस एक टाटा स्काई टाइप का है, मैं सिर्फ वहाँ जाऊँगा, मैं सेटअप लगा दूँगा और वो जो बाकी का खुद मैं अपने घर बैठे या फिर अपने लैपटॉप से वो हैंडल कर सकता हूँ। Yes, Neeraj, you have a comment question, please. Yeah, one basic question I want to ask to Ronak is, रौनक जी, आपने इंडिया का जो कानून है, लीगैलिटीज इन्वॉल्व इन ड्रोन सर्विसेज और वो सब कि क्या आप कितना ड्रोन उड़ा सकते हैं, कहाँ उड़ा सकते हैं, उन सब का कुछ स्टडी किया है? यस, दैट्स व्हाई ड्रोन का जो भी रेंज होता है ना, वो आपका एयरपोर्ट से 800 मीटर्स के रेंज में नहीं ला सकते। एयरपोर्ट है या फिर आप इनकेस आप यहाँ उड़ा रहे हो या फिर एक आप मिलिट्री बेस के 800 मीटर्स पे नहीं ला सकते, इसलिए मैं गूगल अर्थ से वो पिन पॉइंट डाल रहा हूँ। और मेरा खुद का मतलब यहाँ जो जमशेदपुर से मैं हूँ और मेरे यहाँ खुद का एयरपोर्ट में मेरा एक फ्लाइंग क्लब है अपना, तो वहाँ पे बेसिकली हमें सारे रूल्स से तो पढ़ाया जाता है और हम सब सारा डिटेल स्टडी करवाया जाता है कि रूल्स क्या है क्या है, तो वो स्पेशली हम लोग को वही स्टडी ही करवाया जा रहा है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ मुझे सारा रूल्स पता है। ओके रौनक जी, वन मोर क्वेश्चन। इंडिया में जो एक इलेक्ट्रिकल वायर, केबल वायर और ये इतने सारा जाल होता है केबल्स का गलियों में, ठीक है, और बहुत कुछ और भी होता है, कहीं से किसी पेड़ की कोई शाखा आ गई है, कहीं से कुछ आ गया है, और वायर्स का ही बहुत बुरा जंजाल बना होता है कई जगह। तो आपका ड्रोन उन सब चीजों को कैसे हैंडल कर पाएगा? कुछ आपने उसके बारे में सोचा है? एक वेब पॉइंट से दूसरे वेब पॉइंट जाने के लिए हम हाइट डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से अभी तक 100 मीटर तक उड़ा रहे हैं आपके घर तक, अगर हमें को आपके घर से 100 मीटर और आगे जाना है तो वहाँ से हम 200 मीटर का हाइट एलिवेट कर सकते हैं अपना। फिर दूसरा, मेरे को बेसिकली 3D व्यू मिलता है गूगल मैप का, गूगल अर्थ टाइप का उसका जो सेटअप है। बट जो अभी करंट ऐप से यूज़ हो रहा है वो बेसिकली जीपीएस से यूज़ होता है। बट मेरा भी करंट जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जिस नया ऐप डेवलपमेंट में है उसके लिए वो बेसिकली नाविक से इक्विप्ड होगा, और क्योंकि नाविक से इक्विप्ड हो रहा है तो वो पर 2 मीटर पिक्सल से में उसका एक्यूरेसी और हो जाएगा। अभी करंटली उसका एक्यूरेसी 8 मीटर पर पिक्सल है, मतलब 8 मीटर पर ब्लॉक तक मेरे को क्लियर पर 8 मीटर ब्लॉक ऐसे पिक्सल रिलेटेड फॉर्म में आता है वो।
मैं आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वे पॉइंट्स। मैंने ऑटोनोमस कार पे काफी काम किया है। लेकिन उसमें क्या है कि आप एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप बता सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ या जो भी कर्वेचर वहां पे जो भी कुछ इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच में कुछ भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया है जो कि ना आपका गूगल अर्थ, ना आपका नाविक, ना कोई और सिस्टम बता पा रहा है, वो आपके ड्रोन को ही समझना है कि ये कुछ यहाँ पे हर्डल है, कुछ बीच में कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ है, एंड आई नीड टू चेंज द पाथ। तो उस तरह की करेंटली मेरे पास ड्रोन में जो अल्ट्रासोनिक सेंसर इक्विपमेंट है वो 4 मीटर तक वो अभी इफेक्टिव है। उसका रेंज अभी हम करेंटली कुछ पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रेंज बढ़ाने के लिए, वो ताकि 4 मीटर से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक रेडिएशन से वो खुद को पता कर ले अपने पाथ में, और वो पाथ में अब बता के हमें सिग्नल दे। क्योंकि अगर ड्रोन पे ये छोड़ दिया जाए क्योंकि जितना ऑटोनॉमस इसको बनाएंगे, ये सेमी ऑटोनॉमस में ठीक है, तो जितना ऑटोनॉमस बनाने जाएंगे ना उतना वहाँ ये फॉल्ट आ जाता है, मतलब वहाँ टेक्निकल फॉल्ट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि ऑटोनॉमस अगर आपका मॉडल हाईली ट्रेंड है तो उसकी कैलिब्रेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी और वो छोटी सी छोटी चीज को भी, किसी भी चीज को कुछ भी समझ के एकदम ब्रेक कर सकता है सिस्टम को। ठीक है, आई लाइक द आइडिया। Yeah, and they are 12th student, by the way. Oh, that's really great. Congratulations. थैंक यू तो सर। मैं इनको बोला कि बहुत अच्छा चीज कर रहे हो, जो 9 से ही ड्रोन बनाना सीख रहे थे और कुछ किया, तो मैंने बोला बहुत सही है 12th में स्टार्ट करना, अभी से धक्का खाओगे कुछ कुछ करोगे तो कॉलेज तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब या तुम्हें मतलब आर्या पार तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। तो इट्स गुड टू स्टार्ट यंग, आई मीन इट्स फॉर एवरीवन, anyone can start young, or the right time to start is now if you want to start something as a part time या जो भी, it's a part time, they are doing their studies और साथ में ये भी कर रहे हैं, इधर उधर कंपटीशन में जाते रहते हैं, उनसे भी कुछ प्राइज जीता है इन्होंने, थोड़ा सा पेपर वगैरह में भी नाम आ गया, कुछ ब्रांडिंग भी हो गया है। तो अब ये है कि अब उसको या छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, अब उसको कंटिन्यू करेंगे तो दे कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड I can just add a point here. मतलब अभी आप जो कमर्शलाइज इसको कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, that's a गुड पॉइंट, और उसमें अभी शायद थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से जो इमीडिएट नीड है वो सबसे ज्यादा मतलब जो भी लोकल कहीं भी किसी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही वो पुलिस है या अदर एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीओ है या ब्लॉक लेवल पे कोई भी है, उनको जो मॉनिटरिंग के लिए एरियाज के लिए जो ड्रोन चाहिए ना, उनकी डिमांड काफी हाई है। मेरे एक फ्रेंड है फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपुरा ओनली, हमारे सीनियर हैं अश्विनी, ही इज आल्सो इनटू दिस ड्रोन डेवलपमेंट एंड ऑल, और उन्होंने काफी हरियाणा में काफी ब्लॉक लेवल्स पे वीडियोस वगैरह के साथ काम करके एरिया सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं, विच इज इमीडिएट रिक्वायरमेंट। उसमें कुछ नहीं, वो सिर्फ एक कैमरा लगा के देते हैं और एक डिवाइस देते हैं जिसपे वो सब देख सकते हैं कि एरिया में लोग बाहर घूम रहे हैं, कहीं पे बच्चे ग्राउंड्स में क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, कहीं पे कोई ज्यादा हुड़दंगबाजी तो नहीं हो रही है कुछ, वो सब मॉनिटर करने के लिए। करेक्ट, इट्स अ गुड पॉइंट रौनक, आई थिंक तुम्हारा जो अभी करंट ड्रोन वगैरह है अगर कुछ कनेक्ट हो जाए। हाँ बोलो। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो ड्रोन्स है ना वो सर, मतलब हमने जब इसी मतलब एयरपोर्ट में सर बहुत सारे कैजुअलिटी देखे हैं कि ड्रोन्स सर अगर आउट ऑफ कंट्रोल चल जाता है तो उसे कंट्रोल में कैसे लाना है, वो सब प्रोसेस से हम लोग गुजरे, तो हमको पता है। अब सामने वाली ये पुलिस को नहीं हैंडल करने दे सकते ना, दिक्कत ये है। तो अगर ये जो बोल रहे थे ना कि जस्ट ड्रोन कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर, पुलिस हैंडल नहीं करेगा ड्रोन, तुम्हारा ड्रोन हैंडलिंग आपकी रहेगी, हैंडलिंग आपकी रहेगी, आपका बंदा या कोई भी वही बैठ के उसको उड़ाएगा, वही उसको पूरा इमेज वगैरह प्रोवाइड कराएगा, जो भी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करानी है, लेकिन वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन उसको यूज करना चाहता है। अब हर गली हर बंदा भेज के, पुलिस भेज के दिखाया नहीं जा सकता ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके पर्पज के लिए वो यूज कर रहे हैं। बंदा आपका ही होता है, उसमें कोई पुलिस के हाथ में आप मशीन देके नहीं छोड़ रहे हैं। मूविंग सीसीटीवी कैमरा, यस सर, बेसिकली सीसीटीवी कैमरा।
हाँ, तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये थोड़ा सा बताओ एक बार सबको। सर अभी बैटरी लाइफ थोड़ा कम है, क्योंकि बैटरी जो बैटरी लाइफ है वो करंटली लिथियम आयन बैटरीज है। लिथियम आयन बैटरीज का सर 1 ईयर के बाद सर उसका डेट एक्सपायर हो जाता है, वो आउट ऑफ मतलब उसको एक्सपायरी डेट समझ के उसका बैटरी लाइफ बहुत लो हो जाता है। वो करंटली 2300 mAh है, बट उसके बाद वो अभी 30 मिनट्स का बैकअप देते हैं, उसको और आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो करंटली जो हम यूज़ करें वो 2300 mAh का है। वो अभी 30 मिनट्स का बैकअप देते हैं। उसका 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स के बाद वो 1 ईयर उसका बैकअप ऐसा मतलब 1 हार्डली वो 2 से 1 मिनट्स ट्राई करता है। तो ये सब प्रॉब्लम है कि अगर हल्का सा भी सर मतलब नॉर्मल एवरेज वोल्ट से नीचे जाता है तो मेरा ड्रोन का एक इनबिल्ट फीचर्स एडेड है कि वो अपने अपना अगर अपना वो पाथवे कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो अपने अपना मीन पोजीशन में वापस रिटर्न कर लेगा। तो सब बैटरी का अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने वापस अपना मीन पोजीशन रिटर्न हो जाता है। सर तो करंटली उसका इनिशिएटिव ये ले रहे हैं कि सर अभी जहाँ तक मार्केट को देख के पता चल रहा मतलब कॉम्पिटिशन्स को देख के लग रहा है सर, एक होता है अभी लिथियम आयन बैटरीज ना सर बहुत रिस्की चीज़ है। अभी मार्केट को देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ग्राफीन बैटरीज आएगा। ग्राफीन अभी करंटली चाइना यूज़ कर रहा है, चाइना उससे सुपर कैपेसिटर्स बनाता है और वो सिर्फ मतलब बस सुपर कैपेसिटर्स बस बनाया है। वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते हैं, वहाँ वो 1 मिनट के से 4 मिनट के लिए चार्ज होते हैं, वो फिर आगे नेक्स्ट स्टॉप में जाके चार्ज होते हैं। तो ये इसका एफिशिएंसी क्या है कि ग्राफीन बहुत जल्दी चार्ज होगा बैटरीज, और ये करेंटली लिथियम आयन बैटरी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका बैटरी इसका और ऊपर से इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जहाँ तक कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये बहुत जल्दी मार्केट में चाइना या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से लॉन्च होने वाला है। तो सर न्यू बैटरी सर तो करेंटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम हम लोग ऑलरेडी रेडी रखे हैं। ये निकलेगा ये करंट तुरंत हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके डायरेक्टली बिना कोई मॉडिफिकेशंस के। अभी ये टेस्ला वगैरह कौन सा बैटरी यूज करते हैं? ये सब लिथियम आयन ही कर रहे हैं ना अभी तो यूज। ये अभी लिथियम आयन ही यूज कर रहे हैं सर, जबकि टेस्ला में ये लिथियम आयन के साथ हुई झमेला बहुत है सर। उसको चार्ज करने में ना वो जो नॉर्मल मॉनिटरिंग होता है ना कार का, वो बैटरी लाइफ कुछ और दिखाता है और किलोमीटर्स का डिस्टेंस कुछ और दिखाता है, बट उसको उससे ज़्यादा मतलब जब एक अगर सर्विसिंग उसको ठीक से नहीं कराया जाए तो उसका सर बैटरी को बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है जितना वो मॉनिटर करता है उसका एग्जैक्टली उसका जो टेस्ला के इनबिल्ट कंप्यूटर्स होते हैं। So that's the major problem of lithium ion batteries. टेस्ला शायद अपना भी कुछ उसमें करता होगा, आई डोंट नो, वो सारे चीज रिवील नहीं करते होंगे शायद। आपने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ रिसर्च किया है केमिकल्स के साथ, कुछ बैटरी के फील्ड में कुछ किया? बैटरी यू आर जस्ट कीपिंग इट एज वी विल इन सोर्स एनी हाउ एंड हमारा उस पे फोकस नहीं है? सर अपने पर्सनल लेवल पे सर अभी अगर हल्का सा सर अगर बैटरी को यूज करना है तो सर आज वही सब रिचार्जेबल एसिड बैटरीज को यूज करना पड़ेगा, और सब उससे हल्का वेट बढ़ेगा बट मोटर्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बट नहीं, नीरज का क्वेश्चन क्या है ना कि आर यू ट्राइंग टू मेक अ बैटरी ऑफ योर ओन और ट्राइंग टू मॉडिफाई द बैटरी? सर पर्सनल लेवल पे ग्राफीन से खुद हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया अपना, और सर ग्राफीन को एक्सट्रैक्ट करना ही बहुत महंगा प्रोसेस हो जा रहा है कि उसको सर ग्राफीन होता क्या है ना कि सर अगर जो ग्राफाइट जो सर हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं उसका सबसे वो एक लेयर से बनाता है, जहाँ तक कि हम लोग सब पढ़े ही हैं वो 6-7 में एक कार्बन के लेयर से बनता है। सबसे छोटा उसका जो कार्बन लेयर होता है ना उसको ग्राफीन बोलते हैं सर। तो सर वही उसको वो लेयर्स को आपस में सर एक दूसरे से सेपरेट करने में ही ना वो बहुत कॉस्टली हो जा रहा है, बट हमने सक्सेसफुली एक बार ट्राई किए हैं सर। वो थोड़ा कॉस्टली था बट हो गया, क्योंकि I would suggest one thing. There is a company called Himadri Specialty Chemicals, जो कि इंडिया में बैटरी केमिकल्स और इनके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, एंड दे आर वेरी मच ऑनलाइन चेक किया था उसका दाम, वो 1 ग्राम का मतलब सर 1 रुपया पर ग्राम बेच रही है सर, और मुझे जितना चाहिए पर बैटरी वो सर थोड़ा आउट ऑफ सर कॉस्ट चल जा रहा है, मतलब आउट ऑफ बजट चल जा रहा है वो।
और क्योंकि जितना भी मेरा जो रिसर्च और ये सब जो पैसे आते हैं वो हम फैमिली से नहीं लेते, वो हम डायरेक्टली कंपटीशन जीतते हैं, कंपटीशन के पैसे वापस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आउट ऑफ बजट चल जा रहा है सर। नहीं ठीक है, तो क्वालिटी वाइज क्या है, ठीक है वो तो प्राइसिंग वाइज तुमने बोला कि वो आउट ऑफ बजट है, बट क्वालिटी वाइज इज इट, कैन इट डू बेटर टू योर थिंग? सर करेंटली अगर अभी तुरंत इसको अगर एक स्केल लेवल मॉडल में इम्प्लीमेंट करना है तो सर ये अब सर टाटा स्काई है, टाटा स्काई को हम अगर सिर्फ लगा के छोड़ तो नहीं सकते ना, उसको कभी कभी बीच में मॉनिटर करना पड़ता है, कभी कभी का दुकान भेजना पड़ता है। तो मेरा करेंटली ये ओपिनियन है कि हम लोग उसको सर वायरलेसली मॉनिटर कर रहे हैं, तो वायरलेसली ना मेरे वो सर बैटरी का वोल्टेज और ये सब जो कैलकुलेशंस है ना वो वायरलेसली मुझे पहले से शो कर रहा है, तो जहाँ इनकेस उसमें मेरे को जो फॉल्ट दिखा मैं उसको आके मैन्युअली चेंज करवा सकता हूँ अगर, क्योंकि ये ज़्यादा सर ये चीप है, दूसरा ये लाइट है, तीसरा ये जल्दी चार्ज होता है, तो सर मेरा ड्रोन में एक्स्ट्रा लगेज भी नहीं पड़ेगा इससे, दूसरा ये बहुत चीप है मेरे लिए करेंटली, और तीसरा सर ये लाइट तो ही। Okay. Vishal ji, if Ronak is okay, I want to connect with them more. Yeah. So No problem, sir. if he is okay to share his contact so or Ronak whatever. अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, और I mean I can give the number also. Okay. Thank you. So actually just to give you some background की Ronak Kunal in fact. So what we did 8 months ago around. 8 months ago पहले हमने क्या किया था कि there is a school in Jamshedpur, MNPS, Motilal Nehru Public School. So the school I was the first batch of that school. ठीक है, तो हमने जब मैं जैसे घर गया था और कुछ बात कर रहा था प्रिंसिपल से, तो उनको बोला था कि हमने कि हम लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप का चीज कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं, बट नाउ वी वांट टू मे बी डू इट एट स्कूल लेवल। तो ऐसे करके मतलब हल्का हल्का बात होने लगा कि द बेटर इज टू कैच द पीपल एट द मच यंगर एज। तो फिर मैम वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी इनोवेटिव थिंकर, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आई थिंक वी कैन definitely start this entrepreneurship cell from the school and just give us a proposal and we'll see what can be done. So उसका proposal दिया हमने, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो we will launch. So we launched in August and what we did is XLRI का e-cell था, उसको as a mentor on board करा दिया कि वो same city में है, easy होगा थोड़ा सा advising वगैरह के लिए। And there is one more e-cell NIT Jamshedpur का, उनको भी invite किया in fact launch में। So this happened in August and since then we have been conducting sessions every month on like problems, identifying solution and then rating solution। फिर एक contest भी हुआ था इंटर स्कूल और फिर कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी हुए थे, वैसे वैसे होके होता चला यार। और एक IIT KGP का एक वन डे ट्रिप भी हुआ था इनफैक्ट। तो ये सब करते हुए यानी दे वर आल्सो पार्ट ऑफ इट फ्रॉम सम बिकॉज़ वी आर डूइंग इट वंस अ मंथ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर डूइंग इट लाइक एवरी वीक बिकॉज़ लॉकडाउन है और सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो वी आर डूइंग इट। और इसी बीच इन्होंने बोला कि ये लॉकडाउन है, हम लोग ड्रोन ऑलरेडी बनाते हैं, तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस ड्रोन इनटू अ बिजनेस प्लान एंड ट्राई टू डिलीवर समथिंग विद द ड्रोन। तो वहीं से ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं। So the good thing is the entrepreneurship cell school का और इनका जो थोड़ा सा अपना ड्रोन का पैशन था, अब things are matching now and this can become a like inspiration for the juniors। और थोड़ा young age से लोग शुरू करते हैं तो by the time they graduate they might be in a better position to do a lot of things, right? क्योंकि एक बार ग्रेजुएट हो गए उसके बाद तो फिर घर वाले भी उम्मीद करते हैं पैसा का और आप भी उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बहुत साल लगते हैं स्टार्टअप वगैरह सोचने के लिए। तो ये स्टोरी है इनका। तो इनको लाइक आई एम ट्राइंग टू गाइड देम और मुझे लगा कि इनको और लोगों से भी गाइडेंस दिलाना चाहिए मुझे, तो मैंने बोला कि चलो आ जाओ तुम लोग इस फोरम पे भी, आप हम लोग अभी यही सीरीज चला ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट। So this is it's really nice. They are really doing some highly technical and futuristic work.
गुड़गांव में यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, दे कैन फाइंड, अगर उनको शायद आइडिया भी होगा, अगर इस फील्ड में दे हैव इमर्स सो डीप, जो कि काफी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजीज और इनमें, और ये डिलीवरिंग थिंग्स और ये मतलब दिस इज वन पार्ट, लेकिन फ्यूचर में ड्रोन्स के अराउंड काफी बड़ी स्टोरी बन सकती है, विच इज हाईली पॉसिबल। तो इट्स रियली फ्यूचरिस्टिक और हाईली टेक्निकल थिंग। हर कोई मतलब इसमें इतनी इजीली इसमें घुस भी नहीं सकता है। देयर इज कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड ऑल, जहाँ पे इन चीज़ों पे थोड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है अभी। यूएस में भी कुछ फर्म्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, और बहुत कुछ है इसमें, पॉसिबिलिटीज काफ़ी हाई हैं। और I think it's like a rocket science. Yes, rocket exactly. It's more than that. Yeah, I mean what I'm saying is रॉकेट वगैरह जो चांद पे जाना, एस्ट्रोनॉट बनना वगैरह, इसका कोई वैसा एसेंशियल यूज तो नहीं है एग्जैक्टली खाने पीने जैसा, बट यू नो these are all high tech things that is futuristic, and government or even international is want to keep an eye on this kind of technology. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, what can be the लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और इन सब चीजों में काफी मतलब फ्यूचर है इन चीजों का, एंड इट ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ इट। अभी आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, कोई तो स्टार्टअप है यूएस में है शायद, जैसे यूएस में बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है, मतलब आपका एक आउटर में कहीं 1 एकड़ में कोई बड़ा सा घर है, तो वहां पे एक उन्होंने क्या डेवलप किया है कि उन्होंने जैसे अपना मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस जैसा एक ऐसे डिवाइस बना दिया है। तो अगर आपके अब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो होते नहीं है, जैसे अपने यहाँ तो सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल है ये, तो उनका आपके अगर प्रॉपर्टी में कहीं पे भी कुछ मूवमेंट है ना, तो वो आपके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा ना, वो एकदम ऐसे ओपन होगा, फ्लैप्स उसके ओपन होंगे, उसके अंदर से ड्रोन निकलेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अराउंड योर प्रॉपर्टी, पूरे एरिया में घूमना शुरू कर देगा और उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा ऊपर से कि और उसका हाई रेजोल्यूशन रहता है, तो वो पूरा वीडियो, कुछ भी अगर मूवमेंट है, कोई आदमी घुसा है प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पे भी, तो वो उसको पूरा वीडियो कैप्चर कर लेगा। तो मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशंस और जो इसके अराउंड जो चीजें हो सकती हैं, उनका कोई मतलब लिमिट नहीं है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक बार अगर अच्छे से बनती है तो यस बोलो सर। आपके सर्वेलेंस पे भी हम सोच रहे थे सर। बेसिकली ड्रोन मेरा स्पेशलाइजेशन, मतलब ड्रोन पसंद है, बट मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो आरसी एरोप्लेन्स पे है। तो सर अगर बेसिकली अगर सर मतलब नज़र ही रखना है, या फिर एक पर्टिकुलर फ्लाइट रूट पे सर कम्प्लीटली एक नज़र रखना है पर पर्सन पे, तो सर ड्रोन्स की जगह ये इसमें ज़्यादा एफिशिएंट प्लेन्स होंगे, आरसी एरोप्लेन्स। वो सिर्फ बेसिकली अपने रूट से टेक ऑफ लेंगे, एक राउंड लेंगे और वापस आ जाएंगे। क्योंकि ड्रोन्स क्या होता है ना कि सर वो हवा में स्टेबल हो सकता है। तो सर स्टेबिलिटी इसमें होता क्या है कि अगर कहीं वो स्टेबल हुआ, या फिर कहीं सर वो कम्प्लीटली अगर आउट ऑफ द वे भी जा रहा है ना सर, तो दिक्कत क्या होता है कि सर ड्रोन्स का वो हवा प्रोपेल करके चलता है, वो हवा काट नहीं सकता। तो सर ड्रोन्स को हल्का एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर उड़ाना पड़ता है सेफ्टी के लिए। बट आरसी एरोप्लेन एक सर स्पीड कार की तरह समझ सकते हैं आप, वो कहीं से भी निकल सकता है, वो फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है। I understand एरोडायनामिक्स आप जो बात वर्सेस हेलीकॉप्टर, हाँ, I understand एरोडायनामिक्स जो आप बात कर रहे हैं कि कैसे इसका फ्लाइट का एरोडायनामिक्स रहता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मतलब इट्स जस्ट एन आइडिया कि आपका वो एक स्लीपिंग मोड में एक आपका कैमरा है जो रखा हुआ है, और जैसे ही कुछ सडनली ट्रिगर हो जाता है किसी एंट्रेंस, हाँ, ट्रिगर होकर वो आपकी प्रॉपर्टी के अराउंड घूमना शुरू कर देगा और पूरा उसका वीडियो कैप्चर करना शुरू कर देगा। तो वो जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी की मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तो इसका ये मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को बोला जाता है ना, इट्स न्यू इलेक्ट्रिसिटी। न्यूटन ने एक बार टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया, उसके बाद आप देख रहे हैं आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या बन गया है, कितनी तरह के इक्विपमेंट्स घर में यूज होते हैं, वो सब बन गए हैं। तो इसी तरह कुछ टेक्नोलॉजी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बार बेसिक फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है उसका कोई
लिमिट नहीं है, Yes, sir. ठीक है। तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको लगा के क्या क्या किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सिमिलरली ये भी वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज है, अगर इसका अगर ढंग से एक बार फ्रेमवर्क रेडी हो जाए तो इसके यूजेस क्या हो सकते हैं वो बहुत कुछ है। That's what I want to tell you. So, anyone has any comment, question? Aman, you have anything? Nisha, बोलना है? All good. ठीक है. So yeah, Ronak, Kunal, we wish you all the best with your venture. Okay. Thank you, sir. It means a lot to us. Thank you, sir. So yeah, I mean, we can obviously have session like this again with you in a month Sure, or sir. so to know your progress. ठीक है ना? क्या है, क्या नहीं है, क्या problem है, and then we can guide you more. Maybe. ठीक है. ठीक है. तो ठीक है. We heard 2 ideas today and we gave our advices and guidance or maybe a question, comments. It's good. So this is the way we can improve the whole ecosystem of startups. The partner. Yes, Nisha, you want to say something? No, sir. All good. अच्छा. हाँ, ठीक है. चलो, तो वही मैं closing कर रहा था. तो ठीक है. We'll continue with more ideas tomorrow. ठीक है. So good night, everyone. See you tomorrow 10 p.m. Bye. Thank you guys. Thank you.